हे एवरीवन वेलकम बैक। सो लास्ट वीडियो में हमने ट्रांस हिमालय के बारे में देखा था जिसमें हमने काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज एंड जस्कर रेंज के बारे में देखा था। देन देयर आर फ्यू करेक्शन एंड अपडेशन इन दैट पर्टिकुलर वीडियो। सो सबसे पहले उसके साथ ही स्टार्ट करते हैं। तो देयर आर थ्री थिंग्स विच आई नीड टू टेल यू इन द जस्कर रेंज। वन थिंग विच आई टोल्ड यू लाइक जस्कर रेंज में एक पास है जोजिला पास। एंड जोजिला पास से एक नेशनल हाईवे पास करता है जिसे NH-1D बोलते हैं। तो ये एक पहला इंफॉर्मेशन है, NH-1D, which passes through Jojila Pass, which lies in the Jaskar Range. Let me make it here. This is the Jaskar Range. Okay, here is the Jojila Pass, Jojila, and the national highway passes through it, which is NH-1D. Now, another updation is here. I told about Safat Glacier, Safat Glacier, and here Barasigri Glacier. Okay, fine. There is another glacier which is known as Drang Drung Glacier. Drang Drung Glacier. It is important, so that's why I'm telling you here. Now there is a correction in that video. Is I told you about the highest peak of Jaskar Range. That is Leo Pargil. लियो पार्गिल को मैंने सबसे हाईएस्ट पीक बताई थी आपकी जस्का रेंज की। आई वॉज रॉन्ग एंड आई अपोलोजाइज फॉर दैट। लियो पार्गिल नहीं, कामित। दिस कामित इन उत्तराखंड इज द हाईएस्ट पीक ऑफ जस्का रेंज। तो सॉरी, तो आप इसे अपडेट कर लेना। नाउ आज की एजेंडा को स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज विल बी डिस्कसिंग अबाउट ग्रेटर हिमालय, एंड देन विल डिस्कस अबाउट लेसर हिमालय और मिडिल हिमालय। और नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस अबाउट शिवालिक्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, वो भी वीडियो जल्दी ही आएगी। तो सबसे पहले आज हम ग्रेटर हिमालय को देखते हैं, इसे क्लियर करते हैं सबसे पहले। नाउ ओके, सॉरी, विल गो टू हाँ। सो योर ग्रेटर हिमालय starts from here. This this is Nanga Parvat, Nanga Parvat. Sorry, and this goes to Namcha Barwa. Okay, fine. Here, Namcha, Namcha Barwa, and these are the 2 points from where Himalaya takes syntaxial bend. Syntaxial bend. तो यही दो important points हैं आपके Greater Himalayas में. Now, there are major characteristics about Greater Himalaya. Greater Himalaya western side में चौड़ा है और eastern side में थोड़ा पतला है. Okay, so the length, the breadth in the western part is almost 400 kilometers, and in the eastern part it's 160 kilometers only. तो ये characteristics इसकी हो गई. Now, in the Greater Himalaya, there are few important peaks, and these peaks are in a chronological manner. So you need to remember that chronology, because exam में आपसे direct question नहीं पूछेगा. They are going to ask you the chronology. Either they'll ask from east to west or west to east. So आपको figure out करना पड़ेगा, and then उसके हिसाब से आपको आंसर देना पड़ेगा. My responsibility is to tell you those peaks, उनकी chronology and all the associated information regarding that peaks. So हम start करेंगे and we'll discuss it from उत्तराखंड, because उत्तराखंड से ही कुछ आपके important peaks बनती हैं. So let me clear it first. Okay, it's better to clear this now. We'll start with the Uttarakhand. So here in Uttarakhand, there is a peak known as Bandar Pooch. Bandar Pooch. Now यही बंदर पूछ के नीचे पड़ता है आपका यमुनोत्री. These two are glaciers as well. Remember it. यमुनोत्री. Now यमुनोत्री के बाद आएगा आपका ये यहाँ पे गंगोत्री. गंगोत्री. Then comes केदारनाथ. केदारनाथ. Then comes Badrinath. Now here lies Kamet, which lies in Jaskar range. Kamet. Then comes Nanda Devi, Nanda Devi, and then comes Trishul, Trishul. Now these are important peaks in Uttarakhand. Now we'll discuss about few important informations regarding these peaks. Or we can do one thing कि हम सबसे पहले इस chronology को complete करते हैं. हम नेपाल में भी देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो नेपाल को इंक्लूड करते हुए पूछा जाएगा. तो सबसे पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं. नाउ
Here comes in Nepal, first mountain range will be Dhaulagiri. Dhaulagiri. Then comes Annapurna, Mansalu, Mansalu. Then comes Ganesh. Then Gauri Shankar. Then comes Cho New. Cho New. Then comes Everest. Then comes Makalu. And then the Kanchenjunga here in Kashmir, in Sikkim, sorry. Kanchan, Kanchan, Kanchenjunga. Okay. So this is the chronology. Now, let me tell you few important information regarding Nepal's Himalaya. Here is a glacier known as Mapchu Chunga Glacier. Mapchu Chunga Glacier. The Ghagra River originates from here. Okay, इसको याद रखना. नाउ अभी हम उत्तराखंड के बारे में डिस्कस करते हैं. उत्तराखंड में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको कंप्लीट करना है. इट्स वेरी नेसेसरी, इट्स इम्परेटिव. सो सबसे पहले हम इसको क्लियर करते हैं. ये रहा जो ये नेपाल को पहले हम देख लेते हैं, इसको आपके उत्तराखंड को. तो उत्तराखंड में सी हियर्स बंदरपूछ एंड यमुनोत्री. देयर आर टू ग्लेशियर्स, दो ग्लेशियर हैं विच ड्रेन्स वाटर इन यमुना रिवर. ठीक है, यमुना रिवर, यहाँ से इन्हीं दोनों से यमुना रिवर निकलती है. यमुना, यमुना. और यमुना की एक ट्रिब्यूटरी है टोन्स रिवर, टोन्स, जो यहाँ बंदरपूछ से निकलती है. इस चीज को याद रखना आप. देन विल जंप ऑन टू द गंगोत्री. नाउ गंगोत्री में एक ग्लेशियर है जिसे गोमुख ग्लेशियर बोलते हैं. गोमुख ग्लेशियर इज देयर. गोमुख से निकलती है भगीरथी. भगीरथी. नाउ यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स बिकॉज अगर आप ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ते हो तो द गैंगेटिक ड्रेनेज सिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम हियर इटसेल्फ. सो इसलिए भी आपको इसे याद रखना ही होगा. So we discussed about Gangotri. Then comes the Kedarnath. Now, in Kedarnath, there is a glacier named as Chorabari Glacier. Chorabari Glacier. From Chorabari Glacier, Mandakini river originates. Mandakini river originates. ठीक है? Then comes the Badrinath. Now, Badrinath, near Badrinath, there is a village which is known as Mana village. यहाँ इसकी माना विलेज की कुछ खासियत है. माना विलेज के जस्ट साथ में ही लगा हुआ है माना पास. आई डिस्कस अबाउट ऑल द पासेस ऑफ उत्तराखंड. अभी अभी इसके जस्ट बाद डिस्कस करूंगा मैं माना पास. सो माना विलेज के पास में ही एक ग्लेशियर है कि आगे चल के सतोपंथ ग्लेशियर. ग्लेशियर सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा. ओके फाइन, वी कैन डू वन थिंग, लाइक मैं भी आपको पंच प्रयाग के बारे में बता दूंगा ताकि आपको यहीं पे वो भी चीज समझ में आ जाए. अलकनंदा निकलती यहीं से बद्रीनाथ से. Now, a very interesting point which I forgot to tell you in चोराबारी ग्लेशियर कि चोराबारी ग्लेशियर के एक हिस्से से मंदाकिनी रिवर निकलती है और एक दूसरा हिस्सा जो है वहां से एक लेक का निर्माण होता है जिसे बोलते हैं गांधी सागर, गांधी सरोवर. नाउ what is important about this lake and why it got the name of गांधी जी is because गांधी जी की अस्थियां यहाँ पे लाकर डाली गई थी इसी लेक में. इसीलिए इसे गांधी सरोवर बोलते हैं. ये बात याद रखिएगा, ये बहुत कम जगहों पे दिया हुआ है. मुझे याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया. तो अलकनंदा सतोपंथ से निकलती है. नाउ यहाँ पे कामित, नंदा देवी एंड त्रिशूल. दिस इज द त्रिशूल माउंटेन रेंज. यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं. पहला हुआ आपका मिलाम ग्लेशियर और दूसरा हुआ आपका पिंडारी ग्लेशियर. अब मिलाम ग्लेशियर से निकलती है आपकी शारदा रिवर, आई थिंक शारदा, या फिर जिसे गोरी गंगा बोलते हैं, आई थिंक गोरी गंगा निकलती है मिलाम से. और पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है पिंडार गंगा. ये वही पिंडार गंगा है जो कर्ण प्रयाग में जाकर मिल जाती है आपके अलकनंदा से. अभी मैं पंच प्रयाग के बारे में आपको बता देता हूँ एक फ्रेश लोकेशन पे, फ्रेश पेज पे. देखिए यही देख लेते हैं, चलिए उसको देख लेते हैं. मैंने बताया आपको, ये रहा आपका गंगोत्री. गंगोत्री ठीक है. गंगोत्री से निकलती है आपकी भागीरथी. भागीरथी ठीक है. भागीरथी जो रिवर है ना,
भागीरथी की एक ट्रिब्यूटरी है भिलांगना रिवर। भिलांगना भिलांगना रिवर। भिलांगना रिवर के पास में ही बना है आपका टिहरी बांध। इसे याद रखिएगा। नाउ उसे छोड़ते हैं, इधर देखते हैं। नाउ ये रहा आपका सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर जो माना विलेज के पास में है। यहां से निकलती है आपकी अलकनंदा, और ये भागीरथी और अलकनंदा जाके मिल जाती हैं देवप्रयाग में। देवप्रयाग। ठीक है। अब यहाँ जो आपको बताया मैंने केदारनाथ, केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी रिवर। मंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ मिलते हैं? यह है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। ओके। अब यहाँ पे देखते हैं, ये रही आपकी धौली गंगा। धौली गंगा कहाँ से निकलती है? नंदा देवी जो रेंजेस है ना, इसके पास से। नंदा देवी रेंज अभी मैंने दिखाया था, नंदा देवी पीक जो है। धौली गंगा ये आपकी मिलती है आपके अलकनंदा से विष्णु प्रयाग में। फिर आती है आपकी नंदाकिनी। नंदाकिनी ये आपके कामित और त्रिशूल के पास से निकलती है नंदाकिनी। ये मिलती है आपके नंद प्रयाग में। नंद प्रयाग। देन कम्स पिंडार गंगा, विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम पिंडार ग्लेशियर, विच आई डिस्कस्ड रिसेंटली। एंड ये मिलती है आपकी जाके कर्ण प्रयाग। ठीक है। एक, दो, तीन, चार और पांच, इसे ही बोलते हैं पंच प्रयाग। अब यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन हैं। व्हेन आई डिस्कस अबाउट ड्रेनेज सिस्टम, आई विल बी टेलिंग यू दोस थिंग्स। सो अभी यहाँ पे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड विच हैज बीन इन द करंट अफेयर्स, जोशीमठ। तो जोशीमठ यहीं लाई करती है, ये रहा। ये जो रीजन है यहाँ पे जोशीमठ है। एंड इट वॉज इन द न्यूज बिकॉज जोशीमठ वॉज सब्सिडाइजिंग, और यू कैन से सबसाइडिंग। ये नीचे की तरफ धंस रहा था। आई टोल्ड यू यस्टरडे ना, दिस हिमालयन रेंजेस हैज बीन फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स, एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर वेरी सॉफ्ट रॉक्स। सो इनका इरोजन, इनकी मास वेस्टिंग, इनमें लैंडस्लाइड इज वेरी फ्रिक्वेंट, वेरी कॉमन। और दैट इज द रीजन, जब ह्यूमन फुटप्रिंट इंक्रीजेज ऑन द माउंटेन्स, जब वहां पे ह्यूमन प्रेशर बढ़ता है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज बढ़ती हैं, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज बढ़ती हैं, बॉडी हीट बढ़ती है। बॉडी हीट की वजह से वहां का, ऑब्वियस सी बात है, बॉडी हीट की वजह से वहाँ का क्लाइमेटिक टोपोग्राफी चेंज होती है, जिसकी वजह से, और ऑफ कोर्स पॉल्यूशन, ह्यूमन बींग्स जहाँ जाते हैं वहाँ पॉल्यूशन फैलाते हैं, जिसकी वजह से वो जो एक्स्ट्रा इकोलॉजिकल प्रेशर है, जो एंथ्रोपोजेनिक है, वो पड़ता है पहाड़ों के ऊपर। और वहाँ की जो हैबिटेट है, वहाँ का जो नीश है पर्टिकुलर, वो चेंज होता है, जिसकी वजह से उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। नॉट इन सम वे, मतलब किसी एक तरीके से नहीं, किसी और तरीके से मिलता है। तो ये रहा पंचप्रयाग। मैंने थोड़ा ज्ञान भी दे दिया, और ये ज्ञान बहुत जरूरी है जानना भी। तो पंचप्रयाग के बारे में हमने देखा। अब हमने पीक बंदरपूछ, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामित, नंदा देवी, एंड हियर कम्स दिस त्रिशूल रेंजेस। और इनसे एसोसिएटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, वी डिस्कस्ड अबाउट दैट। इनसे ओरिजिनेट जो भी रिवर्स थी, उनके बारे में भी हमने देखा। नाउ विल डिस्कस अबाउट फ्यू इंपॉर्टेंट पासेस विच लाइज ओवर हियर, ओके, इन द उत्तराखंड। सो इसको पहले क्लियर करते हैं, थोड़ा सा ये खिचड़ी टाइप का लग रहा है। नाउ सी, we'll start from here. Here lies the Mulingla Pass. Mulingla Pass. Then comes the Mangsa Dhura Pass. Then comes the Trail Pass. Now here Badrinath के पास में माना, here in कामित, नीति, एंड यहाँ त्रिशूल के नीचे लिपू लेक पास। अब ये लिपू लेक जो पास है ना, दिस पास इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हियर लाइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसके बारे में अभी मैं बताऊंगा आपको। तो मैंने पासेस के बारे में बताया आपको, मुलिंगला, मंगसाधुरा, तरेल पास, माना पास, नीति पास, एंड लिपू लेक पास। हाँ, so these are the passes which lies in the Uttarakhand region. Now let me tell you few important things also about उत्तराखंड, जिसमें कुछ important आपके नेशनल पार्क्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। तो देखिए, ये रहा आपका जो नंदा देवी है ना, नंदा देवी। तो नंदा देवी और कामित को लेते हुए ये रहा ना, ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। और इसी में आपके एक एंड पे पड़ता है वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ
फ्लावर्स। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स। एक बार यूपीएससी ने इससे क्वेश्चन पूछ रखा है, याद रखिएगा इसे। और यहाँ पे लिपू लेख के पास में ही एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको बोलते हैं एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एस्कॉट। अब इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे क्या मिलता है, मस्क डियर मिलता है। दिस वाज आल्सो अ क्वेश्चन इन यूपीएससी। यूपीएससी ने इसे पूछा हुआ है कि मस्क डियर कहाँ पे मिलता है, एंड ऑप्शन वाज एस्कॉट। उसे याद रखिएगा आप। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये हो गई। उसके बाद यहाँ पे गंगोत्री रिजर्व एरिया है। गंगोत्री में भी बना रखा है, यमुनोत्री में भी एक रिजर्व एरिया बना रखा है, बिकॉज दीज आर इकोलॉजिकली वेरी वॉलेटाइल एंड इनटॉलरेंट रीजन। सो यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया बनाना गवर्नमेंट की मजबूरी है, बिकॉज ह्यूमन प्रेशर वहाँ जब बढ़ेगा तो वहाँ इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस आ सकते हैं, दैट्स वाई। तो ये रहा आपका ग्रेटर हिमालय। एंड ग्रेटर हिमालय की कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो उत्तराखंड से एसोसिएटेड था, मैंने उसके बारे में बताया। कंचनजंगा के बारे में मैंने आपको बताया ही था कल, आई थिंक, कि कंचनजंगा भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व जो एक मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पे एक ग्लेशियर है जिसे जेमू ग्लेशियर बोलते हैं, जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर से ही निकलती है आपकी तीस्ता रिवर, जो आपके ब्रह्मपुत्रा में जाकर मिल जाती है। सॉरी, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा से मिलती है। यहीं आपके नाथुला और जेलेपला दो पासेस भी हैं। तो इट वाज ओवरऑल अबाउट ग्रेटर हिमालय।